Hello, Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. So, the most crucial topic which is revolving around the globe is how to manage JE boards, right? JE and boards both. Alright. And believe me, even if you knows anyone who knows the preparation about it, who has ever heard of or who has ever thought of doing it, this is the question that they always put you up with. How am I going to manage the JE and boards both? Am I going to ace both, or shall I focus more on boards? Shall I focus more on JE? How shall I go with that? Okay, so let me quickly take you to one journal scenario, and that's going to take you into a very smooth ride and clear all the doubts which are associated to it. The first and the foremost thought that I will always put emphasis on that every year, every year people are going through this. There have been so many people in the past have gone through it, and there will be so many people in the future who will be also going with it. So if you are currently into the movement, don't feel that how it is difficult, how difficult is this. Don't feel it in that way. आपको क्या सोचना है? आपको सिर्फ इतना सोचना है कि जो मैं इस मूवमेंट पे कर रहा हूं वो एकदम जबरदस्त होना चाहिए और उतना काफी है. तो पहले एक बार शुरू करते हैं कि भाई कैसे मैनेज करेंगे, क्या मेन मेन पॉइंट्स है वो सब लेके आएंगे. लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि आपके हौसले बुलंद होने चाहिए और आपका आत्मविश्वास भरपूर होना चाहिए. यू शुड हैव अ फुल फेथ इन योरसेल्फ, द कैपेबिलिटी ऑफ योर्स, द एफर्ट दैट यू हैव पुट इनटू योर प्रिपरेशन, एवरीथिंग. So believe in yourself. Believe in yourself. The moment you will have faith in yourself that मैंने इतनी preparation की है, मैंने इतना effort लगाया है, no one's gonna stop you. Believe me, no one's gonna stop you. And you will win the battle. Let me take you to this. So, manage JEE and boards like a pro or something. So this is the main question that particularly that people were asking that, sir, is it really possible to ace both of them together or not? Let me quickly show you from some of the pictures that we have. So it just randomly, two random pictures of students which I picked up randomly. Just two random pictures. So how does that look? JEE in 2019, AIR 18, JEE in 2018, AIR 4. Would you like to listen to their board marks? So the people who got, rather the person who got AIR 18 has scored 93.7%, and the person who got AIR 4 has scored 97.2%. Can you believe it? You should believe it now. So both the things happen pretty smoothly, and believe me, nowadays, whatever the pattern of the examination is, how the preparation level is there, or what kind of syllabus distribution is there, it is very much likely to possible. Very much likely. Why am I saying this? मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ? पोर्शन लगभग सेम है भाई, सिलेबस एकदम सेम है, तुम्हें सिर्फ लेवल का फर्क देखना है. JEE Main की बात करूं तो JEE Main is all about practice. When I talk about the board, it's all about theory. When you write things in detail, when you express them so neatly and clearly, JEE Main, you know the logic, you apply that, and you reach to the results. That's what is all about the JEE Main. You practice, practice, and you make yourself best at it. All right. So what exactly is required? You just need a guided approach, a proper guided approach. So just have a proper guided approach. That's what I'm going to give you today, right? To ace both of them. And believe me, it's not at all difficult. I'll pick up so many things like how shall you approach the mock test? How shall you actually distribute the syllabus according to the time span that you have? Everything. सब कुछ, हर एक चीज के बारे में बात करूंगा मैं. All right. तो पहले तो ये जान लो कि भाई जो एग्जाम तुम लिखने जा रहे हो वो एग्जाम क्या है, ठीक है. और सबसे बड़ी बात, आप यू आर द बेस्ट जज ऑफ योरसेल्फ. तुम जितना अपने आप को नाप सकते हो उतना तुमसे बेहतर तो और कोई जा ही नहीं सकता. आपको, हर स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता होता है कि उसने क्या किया है, कितने पाप किए हैं, कितने नहीं किए. ऑल राइट. तो बस ये जानने की कोशिश करो कि तुम्हारा स्टैंड कहाँ है, तुम कहाँ स्टैंड करते हो. अपने आप के लेवल को, अपने आप के लेवल को परखो, अपने प्रिपरेशन के लेवल को परखो, और फिर अपनी स्ट्रैटेजी को ऑर्गेनाइज करो. एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रैटेजी बनाओ. दैट हाउ यू गोना रीच टू दैट mark, how do you wanna excel in both of them based upon the current preparation that you have, and how you can make the most of your time, whatever that time is left. All right. And also, you should know the pattern for the both exams. As I told, that when you talk about both, it's all about theory.
how you write them, how beautifully you express them, how well written manner you are actually expressing your thoughts, the knowledge that you have, the ideas behind the concepts, the theory, the derivations, all, each and everything. You have to mention all each and every step, so it should become crystal clear by the examiner, whosoever is reading that solution. So everything should be like your answer sheet should speak. तुमने जो आंसर शीट लिखी आओगे ना बुकलेट में या जो भी तुम्हारा आंसर शीट होगा, whenever your examiner is actually checking it in the boards, right, उसका कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाना चाहिए. एग्जामिनर को लगना चाहिए अच्छा होगी तो तुम्हारी कॉपी बोलेगी, तुमको जरूरत नहीं है बोलने की यार, बिलीव मी, तुमको नहीं बोलना पड़ेगा, तुम्हारी कॉपी बोलेगी. और इट विल बी लाइक यू टॉकिंग टू द एग्जामिनर. एंड बिलीव मी, the best communication, whenever somebody can do the best communication to their examination, to their examiner, then this is the best thing which can happen to you. Best thing. All right. So now there are few things which I should always talk about, particularly when we talk about the preparation with JEE and the boards together. You evaluate your existing performance, and what happens? See, it's a very famous quote. If you can't measure it, you can't manage it. तुमको पता नहीं है कि तुम कितने गहरे पानी में हो, तो तुमको मालूम ही नहीं कि तुमको कितनी मेहनत करनी. So you have to know your level, and I told you, you are the best judge of yourself. जितना ईमानदारी से तुम खुद को जानते हो उतना तो कोई भी नहीं जानता है. So if you can't measure it, you can't manage it. So better measure it. Generally क्या होता है, लोग पेपर नहीं लिखते हैं, लोग ट्राई नहीं करते हैं. मैं जेई मेन की भी बात कर रहा हूँ, मैं बोर्ड्स की भी बात कर रहा हूँ. So when I talk about JEE and boards both, उस मोमेंट ऑफ टाइम पर लोग मॉक टेस्ट कम लिखते हैं कि बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे पास तो टाइम नहीं बचा है तो मॉक टेस्ट देना भूल गए. एक भी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, खुद को चेक ही नहीं कर रहे हैं. नहीं सर मैं पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे टाइम दे रहा हूं. अरे चेक तो करो यार, जो सीखा है क्या वो अप्लाई कर पा रहे हो? सो चेक योरसेल्फ एंड बिलीव मी, दैट्स गोना इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस. दैट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस. ऑलराइट, ओके. तो एक बात ये हो गई बोर्ड्स के लिए. यू राइट सॉल्यूशंस, राइट, बिकॉज देयर रिप्रेजेंटेशन स्टाइल मैटर्स अ लॉट. मैंने बोला ना, जितना अच्छे से तुम्हारी कॉपी तुम्हारे एग्जामिनर से बातचीत कर पाएगी, द बेस्ट कम्युनिकेशन दैट यू कैन एस्टैब्लिश between the examiner and the examinee, that's the best thing which can happen to you. और of course तुम तो जाओगे नहीं अपना आंसर बोलने के लिए, तुम्हारी कॉपी बोलेगी. तो make sure that your answer booklet, your answer sheet speaks well about the question asked, about the solution that you're talking about. So write it well, express it well. All right. Now this is a crucial thing at every phase of your life, not just here, every phase of your life. Time management. Believe me, this is something that always gonna take the highest importance. How beautifully you're managing your time, whether be it in the examination hall, whether be it into the preparation mode, whether be you have the time gap between the JEE and the boards, or everything, every single thing. So that's why we say that time isn't the main thing, it's the only thing. It is the only thing. You have to beautifully manage every single time management aspect of it. Let me take a few points for it. For example, when I talk about JEE, we always say that JEE is the superset, right? We always say that JEE is the superset of boards. आपका बोर्ड सिलेबस, आपका JEE सिलेबस अब तो लगभग सब सेम हो गया भाई, तो बचा क्या है? आपने JEE की प्रिपरेशन कर रखी है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे आइडियाज तो आते ही हैं, सिर्फ आपको बोर्ड में उनको ठीक से लिखना ही तो सीखना है, और क्या है भाई? तो ये बाय डिफॉल्ट फैक्ट है, जिन लोगों का अपने JEE के ऊपर अच्छा कमांड होगा, अपनी JEE मेन की प्रिपरेशन का अच्छा कमांड होगा, JEE एडवांस की प्रिपरेशन का अच्छा कमांड होगा, वो बाय डिफॉल्ट बोर्ड में अच्छा करेंगे, हर हालत में अच्छा करेंगे. ओके, ऑलराइट. नाउ लेट्स डू वन थिंग. मैं एक दूसरी बात बताता हूं यहां पर कि अपने टाइम को तुम डिवाइड करो, और बहुत स्मार्टली डिवाइड करना. तो डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ प्रिपरेशन. नाउ दिस मैटर्स. तुमको पता है तुम कितने पानी में हो, यू नो योर लेवल, राइट? नाउ यू नो द टाइम दैट यू हैव, कितने दिन, कितने महीने बचे हुए हैं, कितने वीक्स हैं, कितना पोर्शन तुम कवर करना चाहते हो, किस चैप्टर्स पे, किन चैप्टर्स पे तुम अपने की प्रैक्टिस और बढ़ाना चाहते हो, किन आइडियाज, किन कॉन्सेप्ट को तुम बार बार रिवाइज करना चाहते हो, किन रिएक्शन मैकेनिज्म को तुम बार बार लिखना चाहते हो, किन डेरिवेशंस को तुम ज्यादा लिखना चाहते हो और ज्यादा पढ़ना चाहते हो, ज्यादा बार बार प्रैक्टिस करना चाहते हो. इट्स समथिंग दैट यू हैव टू डिसाइड. डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली. किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ये जनरल स्ट्रैटेजी है भाई, इसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है कि मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, कि फिजिक्स की बात कर रहा हूं, कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, इससे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, पर ऐसा नहीं भाई, जब मैंने JEE दिया था तो मैंने भी 3 सब्जेक्ट लिखे थे. ठीक है, एनीवेज लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. ओके, तो आपको ये देखना है कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को एज करने वाले हैं.
कैसे अपने टाइम को मैनेज करेंगे आप, किस चीज पे आप ज्यादा स्ट्रेस करना चाहते हैं, और हर स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट एकदम अलग होता है, एकदम अलग होता है। ठीक है, तो अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए, अपना खुद का टाइम मैनेजमेंट बनाइए, खुद का टाइम मैनेजमेंट। आपको लगे तो आप अपने किसी दोस्त के साथ, किसी सीनियर के साथ, या कोई भी एक जो आपका मतलब गाइडर हो, टॉप ट्रेनर हो, या हमारे साथ चैट पे आप डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको बहुत अच्छे सोल्यूशन और सजेशन दे देंगे। डिस्कस योर स्ट्रैटेजी विद अस, वी वुड लव टू डू दैट, बिलीव मी, वी वुड लव टू डू दैट। establish the conversation with us, reach to us, there are a lot of platforms by which you can reach to us, talk to us। हम बताएंगे कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत अच्छी होगी, आप जो सोच रहे हैं वो सही है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है। ऑलराइट, नाउ ये बात हर एग्जाम के लिए लागू होती है। प्रीवियस पेपर तो लगाना ही है भाई, चाहे जेईई मेन की बात करो, चाहे बोर्ड्स की बात करो। बोर्ड्स में एक बहुत बहुत क्रूशियल पार्ट होता है, वो होता है पैटर्न। पैटर्न चेक करो भाई, पिछले 4-5 साल के पेपर उठाओ बोर्ड्स के, पैटर्न देखो किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तुम्हें अपने आप दिख जाएगा, अरे हाँ ये तो सही जा रहा है, ये तो आना ही आना है, चलो इसको तो मास्टर करते ही करते हैं। तो इस तरीके की कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सर्टेन डेरिवेशंस हैं, कुछ सर्टेन रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं, जो आपको देख के बार बार प्रैक्टिस करते करते और पुराने प्रीवियस पेपर्स को पढ़ते पढ़ते या सॉल्व करते करते मालूम पड़ जाएगा कि भैया ये तो आना ही है भाई। डूड, दिस इज डेफिनेटली गोना कम। Observe the pattern of the previous papers. Observe it very carefully, and for that pattern observing, you can definitely take the help of your friends, your teachers, anyone. Ask them, discuss them, have a common opinion. See, discuss with your friends who are also preparing for both of them, for JEE as well as for boards, and for all the friends who are preparing for boards. Talk to them, have their opinion, share your opinion, discuss with them. See whether you both of them are on the same track or not. एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनाओ और उसमें मैक्सिमम लर्निंग जनरेट करो। ऑलराइट, ओके, तो अब देखते हैं भाई, एक ये बहुत कॉमन सोल्यूशन है कि मतलब सर जेईई मेन में तो हम मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बुक्स को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और once I finish this particular book, I'll try to go for some more questions, so I would like to go for another book, or I try to explore another book. So of course people do that. Boards, it's a crime, don't go beyond. Unnecessary बहुत सारी बुक्स के पीछे मत भागो, कोई मतलब नहीं होता है। बोर्ड्स में चीजें लगभग सेम ही रहती हैं, क्योंकि सोल्यूशन को लिखने का कुछ सर्टेन फिक्स पैटर्न्स ही हैं जिसमें आप लिखते हो उनको। तो एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस पेपर्स more than sufficient, believe me dude, this is more than sufficient। इसके beyond अपने आप को परेशान मत करना, बिल्कुल परेशान मत करना अपने आप को, कोई जरूरत नहीं इसके beyond जाने की, बहुत है ये। So not necessary for boards। मेंस के लिए भरपूर क्वेश्चन बैंक हम खुद ही दे देते हैं, तो तुम और कहां से ढूंढते रहोगे, ठीक है। और जिसको लगता है कम पढ़ गए हो, reach to us, we'll give you enough number of questions for that practice। Alright, anyway, so you already know that you have a lot of content to revise and all this, right? So that you can do any moment of time, but for boards, unnecessary books के पीछे मत भागो, बहुत सारे different type के की बुक्स के पीछे मत भागो, या कुछ और different type के किसी ने सजेस्ट कर दिया कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, don't do that। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको स्टिक करिए, उनको ही पैटर्न को ही फॉलो करिए। ये आपका स्टेट बोर्ड भी हो सकता है, या आपका कोई भी बोर्ड हो सकता है, जिस भी बोर्ड को आप फॉलो कर रहे हैं, आप सीबीएसई को फॉलो कर रहे हैं, आप आईसी को फॉलो कर रहे हैं, आप स्टेट बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं, whichever IGCSE doesn't matter, ठीक है। अपने बोर्ड के रिस्पेक्टिव प्रीवियस पेपर्स के पैटर्न को ऑब्जर्व करिए और एक जजमेंट बनाइए, उस हिसाब से प्रिपरेशन करिए, उसके बियॉन्ड जाने की बहुत जरूरत नहीं है। ऑलराइट, बहुत सारी बुक सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ व्हाटएवर बी द प्रॉब्लम, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर पैटर्न नहीं ऑब्जर्व हो रहा है, बात करो लोगों से, समझो लोगों से, ठीक है। जस्ट बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, फिगर आउट करो कि अच्छा ठीक है ये समस्या है, ये परेशानी है, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज। फिगर आउट द सॉल्यूशन मैन, फिगर आउट द सॉल्यूशन। देयर आर लॉट ऑफ ways you can get to the solution, right? Always make sure that you're reaching there। Okay, so practice previous question paper, believe me, this is the single most important key factor in the board preparation, and nowadays in JEE Main this also plays a vital role। Why? Every year you see that, you talk about 2018, 19, 20, right? Every year there are a lot of shifts are there, right? Lot of days, lot of shifts are there, so many JEE Main paper are there, and you practice them enough, there's a plethora of questions over there। The question bank itself of those previous papers is more than enough, so this would be really good enough for you। All right, now when I talk about the preparation of other subjects, what do I mean by other subjects?
Am I talking about physics or chemistry as I teach mathematics? No. I'm talking about the JEE preparation as in whole, physics, chemistry, mathematics, all three. Then I'm talking about the boards preparation. तो जब बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो स्ट्रॉन्ग हो गया भैया ना, सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग. बचा गया लैंग्वेज सब्जेक्ट और एक और जो आपने एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा होगा. मैं उन अदर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, और यकीन मानिए उसकी प्रिपरेशन आपको समय के साथ अभी थोड़ा करना होगा. कुछ घंटे देना शुरू करिए उसको. ठीक है, दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू शुड इन्वेस्ट योर एनर्जी. सो इट इज द हाई टाइम व्हेन यू शुड इन्वेस्ट योर एनर्जी इनटू द अदर टॉपिक, अदर सब्जेक्ट्स आल्सो. जो भी आपका लिंग्विस्टिक का सब्जेक्ट है, लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, इट कुड बी एनीथिंग, राइट. सबका अलग अलग होता है भाई, तो उसमें कुछ मैं पर्टिकुलरली मेंशन नहीं करूंगा. व्हाटएवर इट इज, इट्स लाइक इंग्लिश, इट्स लाइक हिंदी, 2 लैंग्वेज ले रखी है आपने, या फिर आपने लाइक कंप्यूटर साइंस ले रखा है, या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ले रखा है, व्हाटएवर द एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दैट यू हैव, व्हाटएवर, मेक श्योर नाउ यू आर प्रैक्टिसिंग इट इनफ. और हर रोज 2 घंटे उसको दो, इसेंशियली दो. सर्टेन टाइम बना लो. अब देखो, जैसे मान लो कि बोर्ड का एग्जाम अभी आपका 2 महीने बाद, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, या 1 महीने बाद, तो अभी आप जेईई के प्रिपरेशन को भी बहुत सारा टाइम दो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो 10 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे में 2 घंटे अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट्स को दे देते हैं मान लीजिए, तो बचे हुए 8 घंटे में आप ऐसा कर सकते हैं, 4 घंटे बोर्ड्स को, 4 घंटे आप अपनी जेईई मेन की प्रिपरेशन को दे सकते हैं. पर जैसे जैसे आप बोर्ड्स की तरफ बढ़ते जाओगे, मान लो 1 हफ्ते बाद बोर्ड्स है, तो आप बोर्ड्स के ऊपर जो अपना टाइम डिवोशन है वो ज्यादा बढ़ा दो. लाइक 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो 12 घंटे में आपका 9 घंटे या 9 आवर्स आपके डिवोटेड होने चाहिए बोर्ड के लिए, 3 आवर्स आप जेईई मेन की प्रिपरेशन के लिए, राइट. ओके, तो इस तरीके का टाइम मैनेजमेंट बनाइए. पर जेईई मेन को छोड़ मत देना, वो है ना, जेईई की प्रिपरेशन को छोड़ मत देना. दिस इज द बिगेस्ट क्राइम दैट पीपल डू. फिर होता क्या ना, फिर अचानक से उनको लगता है अरे ये तो बीते जमाने की बात हो गई. इन एंशिएंट टाइम वी यूज्ड टू स्टडी और प्रिपेयर फॉर जेईई मेन, नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स. प्लीज डोंट डू दैट. उतना गैप तुम्हारे, see it's purely psychological, believe me, I'm telling you very honestly, it's purely psychological fact. ठीक है, बट वो भी मत आने दो अपने दिमाग, उस तरीके के ट्रैप में फंसो ही मत. ऑलराइट, एंड एज आई टोल्ड यू, सिलेबस पूरा का पूरा खत्म हो जाना चाहिए. क्यों सिलेबस पूरा खत्म हो जाना चाहिए? बोर्ड्स के लिए एक बहुत तगड़ा फैक्टर होता है ये. पढ़ तो यही होगा सबने, रिविजन. द मोर यू रिवाइज, द मोर यू बिकम स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट to establish a pretty good communication with the exam through your answer sheet. Revision, revise as much as you can, and this is the single most important aspect which plays a vital role in deciding your performance in the board examination. जितना रिवाइज कर सकते हो, जेईई मेन में भी करता है, बट जेईई मेन इज along with revision you do a lot of practice. रिवीजन करो, जो कुछ भूल जा रहे हो, कुछ गलत हो जा रहा है, या कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यू रिवाइज दैट, बट यू प्रैक्टिस अ लॉट. बट फॉर बोर्ड्स, रिवाइज एंड रिवाइज, प्रैक्टिस, देन अगेन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट दोस सॉल्यूशंस अगेन एंड अगेन. कीप राइटिंग देम. इट शुड बिकम क्रिस्टल क्लियर. द मोमेंट यू सी द क्वेश्चन, योर पेन शुड स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन. इस तरीके का तुम्हारा प्रिपरेशन का लेवल होना चाहिए. सो रिवाइज एंड रिवाइज as much as you can. All right. अब मैं फटाफट कुछ टिप्स दे देता हूँ भाई. तो फिजिक्स के लिए जनरली हम बात करते हैं, डेरिवेशंस हमेशा फोकस करिए, ठीक है. तो आप जानते हैं बहुत सारी डेरिवेशंस हैं फिजिक्स में, और वही मैटर करते हैं, और बहुत सारे डेरिवेशन पूछे जाते हैं, ठीक है. तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर सर्टेन डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, उस पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा होगा, सो दैट यू नो, राइट. वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब निकालो, जितने फॉर्मूले होते हैं, आप सारे फॉर्मूले सारे प्रूफ रटिए, ठीक है. व्हेन आई से मग देम अप, व्हेन आई से मग, राइट बाय मगिंग. Okay, or mug by writing, it's both ways. Better you write 3-4 times, by default it will be mugged up. All right. Chemistry, reaction mechanism सबसे खतरनाक चीज होती है भाई. तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करूंगा कि भाई आप रिएक्शन मैकेनिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस करिए, because this is the part which becomes the crucial aspect of. People have to be aware of, okay, इसके बाद ये प्रोडक्ट बना, ये बाई प्रोडक्ट आया, उसके बाद फिर ये रिएक्शन हुई, and that's how this is propagated. और बड़े सारे रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं, so you have to be aware of that. मैथमेटिक्स, तो जो चीज है वो हमेशा यही है कि मिसलेनियस क्वेश्चंस ट्राई करो. जब तक पूरा पढ़ लिया तो मिसलेनियस क्वेश्चन ट्राई करो जितना कर सकते हो, ठीक है. और whenever you talk about the miscellaneous questions, you always make sure that the solution is written in a proper manner. स्किप मत करना स्टेप, है ना. कि मैथ्स में क्या होता है भाई, जैसे जेईई में करते हैं तो खटाखट सॉल्व कर लिया, भाग लिए, फॉर्मूला लगाया और इधर उधर लिखा और निकल लिए. यहाँ सब कुछ लिखिए और एक्सप्रेस करिए कि व्हाट यू मीन बाय दोस थिंग्स. व्हाट इफ यू हैव अप्लाइड सर्टेन फॉर्मूला, टेल देम दैट ओके दिस फॉर्मूला, these are the inputs that I want to obtain from here, or this variable means that, and then you properly solve it.
Okay, depending upon the marks for that question, depending upon the marks allotted for that question, you devote that time and energy onto that. Okay, as I told you, practice writing step by step solutions. जब भी boards pass आ रहा हो. Do's and don'ts. The biggest thing that I always take, prepare a subject wise checklist. हर subject के लिए अलग बनाओ. And when I talk about boards, you include those other additional 2 subjects also, the language or the other additional subject, whichever that you have, pick up those subjects also and then prepare a subject wise checklist. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना यार, पूरा कवरेज किया है ना मैंने चैप्टर्स का, पूरा सिलेबस मैंने कवर किया है ना. Okay, then this is the thing as I was talking about. जनता अक्सर ये इग्नोर कर देती है. बोर्ड की प्रिपरेशन सर 1 महीने बाद बोर्ड लिखना है सर, मॉक टेस्ट नहीं देंगे. अरे क्या मतलब है भाई, प्रिपरेशन तो किया ही है. 1.5-2 साल से जो पढ़ते आ रहे हो वो थोड़ी भूल गया तुमको. कुछ नहीं बोलता है, वो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जिसमें दिमाग पे बोर्ड थोड़ा हैवी हो जाता है और कुछ नहीं होता है. मॉक टेस्ट दो, अपने आप को चेक करते रहो तो जील बनी रहेगी, मोमेंटम बना रहेगा, टच नहीं छूटेगा. ऐसा नहीं लगेगा कि किसी बीते जमाने की बात थी या प्राचीन काल में हम ऐसा किया करते थे. ऑलराइट, प्लीज डोंट फॉल फॉर दैट. प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एज मच एज यू कैन. डोंट जे प्रिपरेशन इग्नोर ना कर देना भाई, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा. साइकोलॉजिकली बहुत हैवी हो जाता है. एंड do not plan for anything new. कुछ एकदम नया सा उठा करके मत बैठ जाओ भाई कि एक नई किताब लेके आ गए, एक नई बुक लेके आ गए, मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया सर ये कर डालो. अरे नहीं भाई, जितना है तुम्हारे पास अब तुमने इनफ रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए होंगे. जस्ट फोकस ऑन दैट, बिलीव इन देम, बिलीव इन योरसेल्फ. Alright, so with this, I will be ending this. I've talked a lot about things, but believe me, जो major part है वो बस यही है. पहला, revision as far as the board is concerned. Practice as far as the JEE examination is concerned. Second thing, जितना लिख सकते हो, your answer sheet, your answer booklet should talk to the examiner. This is the way of your representation style. Write and write. As much as you can as far as the boards are concerned. जितना लिख सकते हो उतना लिखो. पेन चलाओ, रटो मत बार बार, कुछ फायदा नहीं होगा. लिखोगे तब समझ में आएगा कि ओके हाँ, I can make this step better. I can improve upon these facts. So always make sure that you are putting a lot of energy into these. Alright? तो अपने पार्ट को बहुत ऑर्गेनाइज करके रखो, रिवीजन रखो अपना हमेशा. पैटर्न को ऑब्जर्व करो प्रीवियस पेपर से हमेशा कि क्या पैटर्न चलने वाला है. उसमें लोगों से बात करो, अपने दोस्तों से पूछो. और अब तक तो फिगर आउट भी काफी कुछ कर लिया होगा, और कर लो अगर नहीं किया है तो. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम अपना बहुत अच्छे से मैनेज करिए और खुद पे भरोसा रखिए. आपने बहुत मेहनत की है. छोटे मोटे पाप किए होंगे मैं मानता हूं, ठीक है, सब करते हैं, पर आपने बहुत मेहनत की है. ये वही चीजें हैं जिनके लिए आप पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं. आपने जो पूरी मेहनत की है, जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, आपने वो छोटे मोटे जो छोटी छोटी चीजों पे जो आपने सैक्रिफाइसेस किए हैं, आपने जो बड़े बड़े सपने सजाए हैं, हर एक चीज के लिए this is the right moment of time and this is the right time to put all the energy that you have got. Study as much as you can. 12 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे पढ़ना भी कोई बड़ी बात नहीं है. Believe me, कोई बड़ी बात नहीं है. पर जब मैं 10-12 घंटे या 15 घंटे पढ़ने की बात करता हूं तो प्लीज दे शुड बी जेन्युइन. ये नहीं कि उसी 1-2 घंटे की पढ़ने के लिए बैठे हैं फिजिक्स और उसी में अचानक से उठ करके घंटी भी बज रही है, वो भी देख लिया कि हाँ कौन अंकल आए हैं, पड़ोस में क्या हो रहा है, पानी भी पी रहे हैं. नहीं भाई, नहीं. डिवोशन इज रिक्वायर्ड नाउ. टाइम मैनेज करिए और सबसे आखिरी बात, खुद पे भरोसा रखिए. आपने बहुत मेहनत की है. बिलीव मी, यू हैव वर्कड हार्ड अ लॉट फॉर दिस एंड all of you will come out with the flying colors. With this, Aakash will sign off. Take care. Good wishes to all of you. Do so well in your examination. Goodbye.